So good morning students. Today we are going to study the topic which is given by F.W. Taylor, and the topic which is we are going to describe today is scientific methods given by F.W. Taylor. As you all know that there are two persons who have given theories regarding business in BST. One is we have already discussed that Henry Fayol, and we have discussed 14 principles of Henry Fayol. Now today we are going to study the four main principles given by F.W. Taylor. F.W. Taylor is also a businessman and as well as an economist, and before that he was a mechanical engineer. He was born in USA in 1856 and he has started working as an engineer also. So he has given some theories regarding business. First of all, we came to know that what do you mean by scientific management. As we all know, management means a science which deals with daily activities related with business, how to manage and how to control all the business activities. And science means it is an art or it is a theory which relates with cause and effect relationship. So according to F.W. Taylor, scientific management is a management which is directly associated with using scientific methods in the management prospect. For example, suppose a businessman has started a business and he has been carrying on business for a very long time. So in that type of business he faced many type of difficulties, like either sometime labor is not proper working, and when labor is proper working, labor is not productive very much. For example, there is a time motion between two job operations in a job. For one person is maintaining sales job and one person is also checking the production department. So there is a hassle between in his mind to control those functions at a same time. So scientific management. Scientific management means a management which is done by the use of scientific methods, and science means a topic, an art which is based on cause and effect relationship. So in short, scientific management is a science which is related with management and based on cause and effect relationship. So scientific management is a science which is related with management and based on cause and effect relationship. It is known as scientific management. Now as we all know, F.W. Taylor, he has given scientific methods and scientific techniques. The full name of F.W. Taylor is Frederick Wright Taylor. He was born in USA in 1856. He was born in USA in 1856, and according to him, in an organization or in a business, there must be proper utilization of the resources if any management wants to get the proper output and proper production. So F.W. Taylor has given four principles of four management methods which will follow in this class. So the first principle which is given by him is mainly known as science, not rule of thumb. Science, not rule of thumb. Science not rule of thumb का मतलब होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज के अंदर जो भी टॉप मैनेजमेंट बोल देता है
मिडिल लेवल और लोअर लेवल अथॉरिटीज़ को वो चीज़ हमेशा माननी पड़ती है। लेकिन FW टेलर के अकॉर्डिंग क्या था कि ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ ने बोल दिया काम को उसी तरीके से प्रोसेस किया जाए। कई बार सिचुएशंस चेंज होती हैं बिज़नेस टू बिज़नेस, तो उन कंडीशंस के अंदर जो वर्किंग अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें अपने हिसाब से काम के अंदर वेरिएशंस करने चाहिए जिससे कि आउटपुट उनको प्रॉपर मिल सके। तो फर्स्ट जो रूल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ हायरार्की अपॉन विच इट इज़ मैंडेटरी टू फॉलो all the rules which is provided by the top level authorities, but according to FW Taylor it is not mandatory because there are variations in business to business activities. So it is upon the persons who are performing the task that how much variation they can make to get the proper output in a proper manner and within a stipulated time period. ओके, सेकंड आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन जो टॉपिक होता है, मेन जो चीज़ होती है वो होती है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सौहार्दता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एरिया से लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग काम करने के लिए आते हैं, और जाहिर सी बात है अगर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग काम करने के लिए आएंगे तो उनके बीच में डिफरेंसेस भी बहुत होंगे। FW टेलर का बोलना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके बीच में किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे, वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हमेशा कोऑपरेट करके ही काम करने चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन नहीं है, लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा। FW टेलर के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के हमारे ग्रुप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा होता है हमारा वर्कर्स का डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम प्लानिंग डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी के सारे प्लानिंग के फंक्शंस किससे परफॉर्म करने पड़ते हैं? टॉप लेवल अथॉरिटीज़ या मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हार्मोनी का मतलब हो गया कि किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से वर्क करना है तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कॉम्बिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं है तो वो डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट हमेशा ये सोच के रखता है कि लेबर जो है, वर्कर्स हैं, वो यूजलेस है, वो काम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। और वर्कर्स जो लेबर डिपार्टमेंट है उसका मानना हमेशा ये रहता है कि हम जितना काम करते हैं उस काम के अकॉर्डिंग हमको पेमेंट कभी भी नहीं मिलता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि दोनों डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके बीच में टाइम टू टाइम क्लैशेस हो जाते हैं। वर्कर्स क्या करते हैं? वर्कर्स ये मानते हैं कि हमको प्रॉपर ना तो सैलरी वेजेस दी जाती हैं, ना हमको बोनस दिया जाता है, और इस वजह से वो क्या कर देते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं टाइम टू टाइम, जिसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट हमेशा क्या सोच के रखता है वर्कर्स के प्रति, उसका क्या नज़रिया रहता है कि ये लेबर क्लास है, इनको कम से कम रेट के अंदर अगर अपन काम कराएंगे तो काम करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट को भी खुद की ये सोच बदलनी पड़ेगी और वर्कर्स के डिपार्टमेंट को भी खुद की ये सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक दोनों डिपार्टमेंट्स खुद की ये सोच को नहीं बदलेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। वर्कर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट को हमेशा ये मान के रहना पड़ेगा कि दोनों क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के दो पिलर्स हैं। जब तक दोनों पिलर्स मिलकर काम नहीं करेंगे या दोनों डिपार्टमेंट्स मिलकर काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो अचीव नहीं कर सकता। तो वर्कर्स को हमेशा ये मैनेजमेंट के साथ में एग्री करना चाहिए कि अगर उनको सैलरी सही दी जाएगी तो फ्यूचर के अंदर वो स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे,
और प्लानिंग और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हमेशा ये मान के चलना पड़ेगा कि वर्कर्स की जो डिमांड्स होती हैं उनको टाइम टू टाइम या जेन्युइन डिमांड्स होती हैं उनको टाइम टू टाइम पूरा किया जाए, और जिसकी वजह से वो कभी भी स्ट्राइक पे या ऐसी कोई प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर क्रिएट ना करें। तो जो दो प्रिंसिपल्स अपन ने अभी पढ़े हैं, पहला प्रिंसिपल्स था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर टॉप लेवल अथॉरिटीज़ ने जो बोल दिया वही हमको करना कंपलसरी है। कई बार क्या होता है बिज़नेस टू बिज़नेस चीज़ें चेंज रहती हैं, तो उसके अंदर जो टॉप लेवल या मैनेजमेंट जो रूल्स अपने को देता है, गाइडलाइंस देता है, वो कई बार क्या होती हैं फॉलो नहीं कर पाते, या अगर उनको फॉलो करते हैं तो टारगेट्स को अचीव करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो सबॉर्डिनेट लेवल के पर्सन्स होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस जो ऑब्लिगेशंस होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इनके अंदर किसी टाइप का वेरिएशन करके जो गोल्स होते हैं उनको प्रॉपर टाइम के अंदर अचीव कर ले। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब कि जो हार्मोनी होती है दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है वो टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप वर्ड देखेंगे डिस्कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी या तार, और डिस का मतलब होता है टूटा हुआ, यानी कि दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन टूट जाएगा, तार टूट जाएगा तो कम्युनिकेशन तो खत्म हो जाएगा। दो डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और एक होता है वर्कर्स का डिपार्टमेंट। इन दोनों के बीच में अगर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो इसका नुकसान मैनेजमेंट को उठाना पड़ेगा, बिजनेस को उठाना पड़ेगा। मैनेजमेंट हमेशा सोचता है कि वर्कर्स काम नहीं करते, यूजलेस होते हैं, और वर्कर्स हमेशा ये सोचते हैं कि दे आर अंडरपेड, उनको कभी भी पेमेंट पूरा नहीं किया जाता। तो हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड का अगर अपन इंग्लिश में देखते हैं, मैनेजमेंट के टर्म्स में देखते हैं, तो इसका मतलब होता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, and there are mainly two departments in an organization. First is management group and second is workers group or labor department. There are chances that there is a clash between these two departments. First, the management department always thinks that workers have no work and they will be paid less, whereas the workers have a tendency or thinking regarding the management that they have been underpaid and they have not been paid very much according to their efforts. So in those conditions they will go on strike, they will stop the work, and ultimately the side effect will be on the organization. The organization will start losing their market profits, their market shares, and will have a tough competition with their competitors. A proper example can be seen in this, that some time before there is a clash in Tata Steels. Tata Steels, we all know, is a well reputed company in India. So in Tata Steels what happens that when the CEO is Cyrus Mistry, you all know, now currently is Mr. Ratan Tata. So Cyrus Mistry was the previous CEO of Tata corporations, and Tata Steel comes under his guidance control. So Cyrus Mistry has thinks that the labor who are working under Tata Steel were not performing well and they are useless, and he thinks to change that complete labor. When the worker department knows that, the labor union knows that, they went on a strike. As a result, the production stops, and ultimately Tata Steels got a tough competition from Jindal Steel, because Tata Steel has lost his market share around 18%, and that 18% share, market share, has been controlled by Tata Steel. So between clash of these two departments, लॉस किसका हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हुआ है, लॉस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर हमेशा जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ होती हैं या मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं और वर्कर्स होते हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपस में क्लैशेस नहीं करने चाहिए। अगर ये कभी भी आपस में क्लैशेस करेंगे तो इसका अल्टीमेटली नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान होने के बाद में डायरेक्टली नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को तो होगा ही, उनकी रेवेन्यू भी कम होगी, लेकिन इसका अल्टीमेट प्रॉफिट एक्सटर्नल या आउटसाइडर्स को होगा, और आउटसाइडर्स के अंदर इनके कॉम्पिटिटर्स इंक्लूड
कर लिए जाते हैं। तो ये दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। अब जो दो मेन प्रिंसिपल्स और हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इन चारों प्रिंसिपल्स को अपन एक ब्रीफली तरीके से समझ लेंगे। तीसरा जो उन्होंने बताया था उसका नाम दिया था इन्होंने कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वर्किंग होती है तो वर्किंग किस टाइप से होनी चाहिए, कॉपरेट करके होनी चाहिए। काम जो होना चाहिए वो हमेशा कॉपरेशन के अंदर होना चाहिए। हर व्यक्ति को इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और चौथा जो इन्होंने दिया वो दिया डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स फॉर इंप्रूविंग देयर एफिशिएंसी। अच्छा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं या अथॉरिटीज़ होती हैं, कंसल्टिंग अथॉरिटीज़, उनकी ड्यूटी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी अगर एम्प्लॉय को, लेबर को किसी टाइप की अगर वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो कॉपरेट करें, उसको हेल्प करें। सपोज़ करिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग प्रोसेस समझ में नहीं आती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो आपका कंसर्निंग टॉप अथॉरिटी होगी, मैनेजर होगा, सुपरवाइज़र होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको कॉपरेट करे, आपको टास्क समझने के अंदर हेल्प करे, और आप जब तक टास्क प्रॉपर तरीके से करने में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक वो आपको सपोर्ट करे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेस होती हैं, लेबर्स होती हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, उनका काम करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग अथॉरिटीज़ होती हैं, कंसर्निंग अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल पर्सनस हैं, उनको टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहें, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में अपडेट देते रहें। अगर इंडिविजुअल पर्सनस को एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो अपने टास्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है कि आपने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का नाम सुना होगा, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर अगर आप जयपुर की किसी कंपनी का नाम सुनते हैं तो आप जेनपैक्ट जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, या बीपीएम है, बीपीएम है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी है, उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जेनपैक्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कोई भी पर्सन आफ्टर ग्रेजुएशन वर्किंग के लिए अगर अप्लाई करता है और उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो वो वहाँ पे एज एन एनालिस्ट के तौर पे जॉब करता है। और जब वहाँ पे वो बिज़नेस के अंदर जॉब करेगा तो जाहिर सी बात है बिज़नेस एनवायरनमेंट उसके लिए नया है, घर के एनवायरनमेंट को छोड़ के बिज़नेस में गया है, तो वहाँ पे उससे ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ की टर्मिनोलॉजी, वहाँ के जो जार्गन्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं वो उससे समझ में नहीं आएंगे। तो जो पर्सन वहाँ पे नया जॉब कर रहा है और जो पुराने लोग वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो बिज़नेस एनवायरनमेंट से भली भांति परिचित है, तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इंडिविजुअल पर्सन अब नया बिजनेस के अंदर आया है, कंपनी के अंदर आया है, उसे प्रॉपर सपोर्ट किया जाए, उसे प्रॉपर बिजनेस के बारे में बताया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको काम समझने में प्रॉब्लम होती है तो उसकी सेपरेट ट्रेनिंग करवाई जाए। ऐसा ही एक एग्जांपल अपन कंपनीज़ में देख सकते हैं। कंपनीज़ के अंदर अगर कोई नई लेबर हायर होती है तो उस नई लेबर को वर्किंग करने के लिए जो सबसे सीनियर लेबर होती है इसकी सुपरविज़न में रखा जाता है। कंपनी का मानना होता है कि सीनियर लेबर के नीचे अगर जूनियर लेबर काम करेगी तो उसकी काम जो होगा वो प्रॉपर रहेगा, सीनियर लेबर को पता रहेगा कि जूनियर लेबर कहाँ पे मिस्टेक कर रही है, उसकी मिस्टेक्स को वो सही करवाएगा जिससे कि फ्यूचर के अंदर वो मिस्टेक ना कर पाए और ख़ुद के काम के अंदर वो परफेक्ट हो जाए।
तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की जो मेथड थी, जो टेक्निक इन्होंने दी थी एफडब्ल्यू टेलर ने, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हमेशा कोऑपरेट करके काम करने चाहिए, इंडिविजुअल काम नहीं करने चाहिए। अगर इंडिविजुअल काम किया जाएगा तो इसका अल्टीमेट लॉस किसको रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन को रहेगा, और वो इंडिविजुअल पर्सन भी अपना जो टास्क होगा वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली उसके जो इंडिविजुअल गोल्स होंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ जो एफडब्ल्यू टेलर ने हमको बताया, मेथड बताया, उसके अकॉर्डिंग क्या था? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स फॉर इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए वो टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग करवाता रहे, उनका एंटरटेनमेंट करवाता रहे, जिससे कि एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो बोर्डम का शिकार ना हो। कई कंपनीज होती हैं, कई कंपनीज के अंदर न्यू मशीनरी आती है। अब न्यू मशीनरी आती है तो किसी को यूज़ करना तो नहीं आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या ऑर्गेनाइज करते हैं कि वर्कर्स के काम करने के लिए सेपरेट एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग शेड्यूल बना देते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर क्या होगा कि फॉरेन से अगर मशीन इंपोर्ट हुई है तो कोई फॉरेन से ही इंजीनियर आएगा और लेबर्स को यहाँ पे मशीन के ऊपर ट्रेंड करेगा, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत लंबे लंबे काम होते हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट्स चलती हैं, तो इन कंडीशंस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ को बोर्डम से दूर करने के लिए उनके लिए अलग अलग टास्क ऑर्गेनाइज करवाए। अगर एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयर अलग अलग टास्क नहीं करवाएगा तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर पड़ेगा, कि वर्कर्स जितने कैपेबल होंगे काम करने के लिए वो उतना काम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, टास्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, कोई भी डेवलपमेंट जो वर्ड आता है, डेवलपमेंट हमेशा दो तरीके का होता है। एक तो होता है मेंटल डेवलपमेंट, जिसे अपन कह सकते हैं मेंटालिटी ऑफ वर्कर्स, और एक होता है डेवलपमेंट, वो होता है हमारा मॉनेटरी डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं, अगर वो अपना प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एफर्ट्स पूरे तरीके से दे रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप अथॉरिटीज़ होंगी उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वर्कर्स हैं उनका मॉनेटरी डेवलपमेंट किया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी सैलरी वेजेस दी जाए, रेम्यूनरेशन अच्छा दिया जाए उनको, और इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो भी वर्कर्स को प्रोवाइड करवाए जाएं, जिससे कि वर्कर्स खुशी खुशी अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है मेंटालिटी ऑफ वर्कर्स। कई बार अगर वर्कर्स की मेंटालिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वर्कर्स की मेंटालिटी को चेंज करवाने के लिए टाइम टू टाइम बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स का जो मेंटल लेवल होता है वो डॉक्टर्स के थ्रू चेक करवाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के थ्रू चेक करवाना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनके लिए जो मेडिकल चेकअप, मेडिकल कैंप्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिससे कि वहाँ पे खुद का चेकअप करवा सकें। एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, कई बड़ी कंपनीज होती हैं वो हर साल क्या करती हैं, खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट देती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स देती हैं। मेडिकल बेनिफिट से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं वो अगर खुद को कभी भी बीमार मानते हैं तो जो डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे जाके खुद को ट्रीट करवा सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल देते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं लगातार कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं 10-10, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स में, इसकी वजह से जाहिर सी बात है उनकी आंखों के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कराता है, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की आईज चेकअप करवाता रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। तो एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि जो वर्कर्स होते हैं अगर इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को अपनी तरफ से दो काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक तो उनकी मेंटालिटी देखनी पड़ेगी, उनको अपनी तरफ से बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे सकें,
और दूसरा हो गया उनका मॉनेटरी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि वो उनको पेमेंट अच्छे किए जाएं, जिससे कि वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े FW टेलर के। तो उसके अंदर थर्ड प्रिंसिपल जो है, उस थर्ड प्रिंसिपल को नाम दिया जाता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब हो गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर न्यू एम्प्लॉय जाता है तो सारे टास्क अपनी तरफ से खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। उन टास्क से बचने के लिए, उन टास्क से समझाने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी, सीनियर अथॉरिटी उनके पास होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंडिविजुअल पर्सन को गाइड करे कि किस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, जिससे कि इंडिविजुअल पर्सन की ग्रोथ भी हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस नहीं हो। इसका मैंने एग्जांपल बताया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं या बड़ी फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, जहाँ पे न्यू लेबर को सीनियर लेबर के साथ में एसोसिएट के तौर पे रखा जाता है और ये देखा जाता है कि उसकी वर्किंग कैसी है और उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करवाया जाता है। फोर्थ जो प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा था इनका, उससे कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स फॉर इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी एंड स्किल। आप इसके सामने एफिशिएंसी के आगे आप एंड स्किल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो स्किल होती हैं उनको तराशने का काम, इम्प्रूव करने का काम भी हमेशा किसको करवाना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को ही करवाना पड़ता है। डेवलपमेंट जो होता है वो 2 तरीके का बताया मैंने आपको, कि एक तो लेबर का जो एम्प्लॉयज़ का होता है वो कैसा होना चाहिए, मॉनेटरी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनसे जितना काम करवाया जाता है उसके अगेंस्ट में उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो खुश होकर अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट ज़्यादा प्रोवाइड करवा सके। और दूसरा होता है मेंटालिटी ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स की जो मेंटालिटी होती है वो भी टाइम टू टाइम बिजनेस के अंदर चेंज होती रहती है, तो उस मेंटालिटी को भी क्या करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। या ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्कर्स से टाइम टू टाइम उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता रहे, और अगर उनको किसी भी टाइप की कोई परेशानी है तो उस परेशानी को सही करने का अश्योरेंस दिया जाए और सही भी किया जाए, जिससे कि वर्कर्स की जो मेंटालिटी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो एकदम अच्छी रहे और वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम करता रहे। तो ये 4 मेथड्स थे जो FW टेलर ने किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर वर्किंग के लिए हमको बताए थे। इसके बाद में इन्होंने बताया था हमको साइंटिफिक टेक्निक्स बताई थी। साइंटिफिक टेक्निक्स का मतलब होता है ऐसी टेक्निक जिन टेक्निक से ये पता लगाया जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिव लेवल कितना है और इनप्रोडक्टिव लेवल कितना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. We'll discuss new topic in the next class. Thank you.